दोस्तों नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपके अपने इस मंच में जिसका नाम है मयूर जानी। ये छोटी सी वीडियो रहेगी लेकिन इस वीडियो में महत्वपूर्ण बात इस पूरे वैश्विक उठापटक के माहौल में हमारा जो स्टैंड है भारत का, प्रधानमंत्री मोदी की अगुवाई में भारत ने लिया हुआ जो वैश्विक डिप्लोमेसी में जो स्टैंड है, वो स्टैंड किस तरह से बेवकूफाना है, कितना बेवकूफाना है और क्यों बेवकूफाना है, इसको समझाने के लिए प्रोफेसर सैक्स ने बहुत बढ़िया बात कही है। जेफरी सैक्स कहते हैं इनको, बड़े विद्वान व्यक्ति हैं, पूरी दुनिया में उनका मान सम्मान है उनकी विद्वता और उनकी जानकारी के लिए। और उन्होंने जो चीजें बिल्कुल बारीकी से खोल के रखी है 4 मिनट की वीडियो में, पहले मैं आपको वो दिखाऊंगा। आप सबसे गुजारिश है कि अगर आपने अब तक हमारे इस मंच को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर ले। और ये नीचे आप जो देख रहे हैं स्क्रॉल चल रहा है, उसमें आप हमें किस तरह से आर्थिक सहायता भेज सकते हैं। अगर आप भेजना चाहें तो हमें जरूरत है, आप अगर चाहें तो ये नीचे लिखा हुआ है। आप इनमें से किसी भी रास्ते जितना चाहे उतना सहयोग कर सकते हैं। तो चलते हैं प्रोफेसर सैक्स के पास। सैक्स, SACHS, सैक्स, मतलब हाँ, उसका उच्चारण थोड़ा मिलता जुलता है लेकिन कोई गलत मतलब नहीं निकाला। एक्चुअली सैक्स भी कहते हैं और कोई जो है वो सैक्स भी कहता है, वो अलग अलग प्रोनाउंसिएशन है उनके नाम, पर वो जो कह रहे हैं वो बड़ी महत्वपूर्ण बात है। आप लोग वो ये सबटाइटल के साथ है वो ये वीडियो जो है, तो आप पढ़ भी सकते हैं। और जहां अगर आपको मुझे लगा कि मुझे कुछ एम्फसाइज करना है तो मैं बीच में रोक के बताऊंगा भी क्या बेवकूफाना और क्यों बेवकूफाना है। हम इस पूरे इस माहौल में हमने क्या गलतियां की है मोदी साहब की वजह से, या मोदी साहब ने की जानी। Sad to say, India plays two roles. One of them completely erroneous for India, and the other very important. The erroneous role is India thinking that it will replace China as America's supplier, and that it will reap benefits as together with the United States and Israel against, with the United States against China and Israel as a provider of military technology and intelligence technology. So India has sidled up to the United States despite all the abuses, and it hasn't really ended that. Modi was in Israel a few days ago. For God's sake, what the heck is that? And there's also, there's other considerations, but that's one side. The other side is India should remember that its colonization by the British Empire wasn't a great party. It was a disaster. And the same with the United States. To become a vassal of the United States, to play with the United States in the Quad, to suffer a calamitous energy crisis because India is completely energy import dependent from the Middle East because of a U.S.-Israeli war of imperialism is not what India wants. So India has the presidency of the BRICS this year. If India, Russia, China, Brazil, South Africa, the African Union, Egypt, Ethiopia, all stand up and say, this is outrageous. And if Europe, God help us, would follow Pedro Sanchez and say, this is not good for us, actually, the fighting will stop. After that, I think the consequences will be extremely significant. Of course, the U.S. will have been exposed, as exactly Kissinger's adage has it, to be a friend of the United States is fatal. This will be proved yet again. I don't think Israel can continue in this mad
violent way after this, it will have created a worldwide crisis, not just a regional crisis. I think Israel, if it continues in this way, should be expelled or suspended from the UN, as South Africa was. It is a violent, vicious state that either regains its senses or is going to lose its hold. So this is going to be another reckoning that will come. But I think the way this war will end is the world telling the United States and Israel, stop, it's over, you're wrecking the whole world. Professor Sachs, thank you very much. That is all I wanted to ask you, and I want to say thank you again for your extremely helpful, comprehensive, thorough, insightful answers. म्यूट था। हाँ, तो प्रोफेसर सैक्स ने ये बता दिया। अब देखिए, इस चीज को समझने की कोशिश कीजिएगा। प्रोफेसर सैक्स ने कहा कि हमने, मतलब वो तो आपने पूरा पढ़ा, मैं रिपीट नहीं करूंगा, और मुझे इतना यकीन है कि आप इतना, सब लोग जो है अंग्रेजी जानते समझते हैं, लेकिन मैं सार बता दूं। उन्होंने कहा कि जो गलती है वो ये है कि वॉर शुरू होने से पहले वो वहां पे कुछ दिन पहले ही गए वहां पे, और एक तरह से इसको लेजिटिमेसी दी। दूसरा, भारत को ये वहम है, ऐसा लगता है कि ऐसा करके अमेरिका की गोद में बैठ के, डिस्पाइट ऑफ द फैक्ट कि अमेरिका ने इतने सारे इंसल्ट्स, इतने सारे अपमान पूरी दुनिया के सामने भारत के किए हैं, इसके बावजूद भी अगर भारत अमेरिका की गोद में जाकर बैठेगा तो वो चीन को रिप्लेस कर पाएगा किस बूते पे? कोई बूता नहीं, कोई दम नहीं। इसलिए चीन तो प्रोडक्शन का, पूरी दुनिया का प्रोडक्शन का हब है, केंद्र है, हम नहीं है। लेकिन फिर भी हम ये सोचते हैं कि हम चीन को रिप्लेस करेंगे क्योंकि अमेरिका की मेहरबानी हो जाएगी, और इजराइल से हमको जो है डिफेंस और मिलिट्री जो इक्विपमेंट्स और एम्यूनिशन से वो मिलते रहेंगे, तो इनके साथ जाके बैठ जाते हैं ईरान को छोड़ के। तो ये बहुत बड़ी गलती है, ये प्रोफेसर सैक्स का कहना है। उसके बाद उन्होंने बाकी सब बातें कही जो रिलेवेंट और रिलेटेड हैं इस पूरी घटना को लेकर। अब एक चीज और मैं आपको पूछना चाहता हूँ, वो या तो आपसे साझा करना चाहता हूँ, मेरे मन में जो मैं सोच रहा हूँ, जो पढ़ रहा हूँ। आप इस बात को सोच के देखिए कि ईरान पश्चिम एशिया के अपने आसपास के देशों पर, जो कि हम मिडिल ईस्ट कहते हैं, जिसमें सऊदी अरेबिया भी है और यूएई भी है, वहां पे अमेरिका के जितने भी बेसिस हैं, एयर बेसिस या तो मिलिट्री बेसिस, उन पे हमला कर चुका है। और जो ऑयल रिफाइनरीज हैं, ऑयल डेपो हैं और पाइपलाइन से उन पर हमला कर चुका है और कर भी रहा है। ऐसी स्थिति में आप सब जानते हैं कि सऊदी अरेबिया जो है उसने पाकिस्तान के साथ एक डिफेंस डील की है, जिसमें अगर सऊदी अरेबिया को या उस पर कोई हमला करे तो वो उस डील को एक्टिवेट कर सकता है। पाकिस्तान अपने आप में एक न्यूक्लियर कंट्री है, और अगर सऊदी अरेबिया का विदेश मंत्री ये कहता हुआ सुनाई दे कि अगर अब फिर से एक बार और हम पर हमला हुआ कहीं भी सऊदी अरब में ईरान के द्वारा, तो हो सकता है कि हम पाकिस्तान के साथ वो जो हमने डिफेंस डील की है उसको एक्टिवेट करते हैं, और तकरीबन 50 जितने मुस्लिम कंट्रीज के साथ मिलकर एक मोर्चा खोल दें तेहरान के, ईरान के सामने, तो क्या होगा? और अगर ये हुआ तो उसके बाद क्या होगा, ये दोनों चीज मैं आपको बताता हूं। पहले ये जो सऊदी अरेबिया के विदेश मंत्रालय देखने वाले सज्जन हैं, एक साहब, उनको पहले मैं आपको सुनना चाहता हूं, उसको आप जरूर सुने। ये रहा, सुनिए। Decide to enter with complete force with regards to this war, Iran is definitely going to be the biggest loser, because Saudi Arabia will activate its bilateral defense agreement with Pakistan, and it will rally the Arab and Muslim world. We are speaking of over 50 Muslim countries to have one target, is to put Iran on its place. So the last thing we want actually is to enter this war, and we want a political solution by any way.
definitely the best outcome would be for Iran to let go of the three major requests or the three major issues, which is the militias, the nuclear ambitions, and also the ballistic missiles. Will there be a way through which the Americans and the Iranians find a way through which they can save the Iranians' face and have all these three demands to be applied without declaring complete surrender? That would be the greatest तो सुन लिया आपने कि भाई अगर और हमले हुए तो फिर हम तो पाकिस्तान के साथ जो डिफेंस डील है उस डील को एक्टिवेट कर देंगे, 50 जितने और मुसलमान देशों को लेकर मोर्चा खोल देंगे, और ये ना हो ये अच्छी बात है, ऐसा सऊदी अरेबिया के विदेश मंत्री। अब थोड़ा एक कदम आगे चलते हैं कि अगर ये हो गया तो पाकिस्तान क्या कहता है। पाकिस्तान में जो बातचीत हो रही है और वहां के जो सरकार में बैठे हुए लोग हैं जो वहां के मीडिया को जो बात बता रहे हैं, वो अगर मैं बताऊं आपको तो आप सोचेंगे कि अगर ये हो गया उसके बाद फिर अगर ये होना है तो आने वाला जो समय है वो कितना घनघोर अंधेरे से भरा हो सकता है। क्योंकि ये जनाब जो है ये पाकिस्तानी मीडिया पे, इनका नाम मैं भूल गया हूं, ये हैं सरकार से ही जुड़े हुए हैं वहां के पाकिस्तान की, और ये कह रहे हैं कि अगर ये सब होते हुए जो मैंने अभी आपको बताया हम पर हमला, मतलब पाकिस्तान की सरजमीन पर हमला किसी ने भी किया तो पाकिस्तान क्या करेगा। वो कह रहे हैं कि पाकिस्तान सीधा ना आओ देखेगा ना ताओ, और सीधा वो भारत के मुंबई जैसे शहर पे हमला बोल देगा। क्यों, सुनिए इसको। कोई हमला कर दें हमारे, तो अगर हमारे न्यूक्लियर रेंज में नहीं भी अमेरिका, लेट से अगर हम खलीजी ममालिक में जो है उनके अड्डों तक भी नहीं पहुंच सकते या हम इसराइल पे भी हमला नहीं कर सकते, हमारे लिए क्या वाइज रास्ता होगा आपके ख्याल में? इंडिया हमने तो देखिए और कुछ नहीं करना। हमने तो अगर हमारी रेंज वहां ना भी हुई और अब हम पे कुछ किसी ने बुरी नजर से देखा तो हमने तो बगैर सोचे समझे भारत पे, मुंबई पे अटैक कर देना है, न्यू दिल्ली पे कर देना है, हमने तो छोड़ना नहीं है। सही। हाँ, देखी जाएगी बाद में, छोड़ना चाहिए भी नहीं। अगर हमारे पास और कोई रास्ता नहीं होगा, अगर अमेरिका हमारे कोई हमला करता है, जो कि नामुमकिनात में से मैं फिर वही कह रहा हूँ, लेकिन ये बात जान लेनी चाहिए तमाम दुनिया को कि अगर खुदा ना खासा पाकिस्तान पे किसी ने बुरी आंख से निकाल डाली, इस वक्त हमारी रेंज में अमेरिका भी नहीं और ना इसराइल है, लेकिन अगर कोई सूरत हाल ऐसी डेवलप होती है तो पाकिस्तान के पास और कोई ऑप्शन नहीं होगा कि वो भारत में जहां उसका दिल चाहता है हमला करेंगे। बस यही बताना था आज इस छोटे से वीडियो में। आपकी बारी है, आप इस बातचीत को, ये जानकारी जो आपको मैंने आप तक पहुंचाने की कोशिश की है, आप उस पर क्या राय रखते हैं, लेकिन हमको जरूर से बताइएगा। लगाओ की जानकारी काम की है तो इस वीडियो को लाइक करें, इसकी लिंक को आप हो सके उतना शेयर करें ताकि और लोगों तक पहुंचे। और मंच ये आप ही का है, अगर आपने अब तक इसे सब्सक्राइब नहीं किया तो बेल आइकन है, घंटी है, वो बजा दीजिए, तो आपको आप हमारे ये जो इतना बड़ा विशाल एक दर्शक परिवार हमारा बन रहा है उसमें आपका भी स्वागत हो जाएगा। और दूसरी बात यह है कि आर्थिक सहयोग की हमें जरूरत है और हम आप ही से मांगेंगे। तो ये जो नीचे आप देख रहे हैं, ये जो स्क्रॉल, इसमें जानकारी है, आप जिस तरह से और जितना सहयोग कर सकते हैं जरूर से करें, ये हम अपील करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का हमारे साथ इस बातचीत में जुड़ने के लिए। थैंक यू वेरी मच। नमस्कार।